خطرناک کورونا وائرس نے کراچی میں پنجے گاڑ لیے۔ 24 گھنٹوں میں شہر میں 10 نئے کیسز رپورٹ۔ حیدرآباد میں بھی ایک مریض سامنے آ گیا۔ ملک بھر میں متاثرین کی تعداد 18 ہو گئی، 16 زیر علاج۔ 2 صحتیاب، تمام افراد ایران اور شام سے وطن واپس لوٹے تھے۔ کورونا سے نمٹنے کے لیے سندھ حکومت ان ایکشن۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں وائرس لا علاج نہیں، شہری اطمینان رکھیں۔ مرتضی وہاب کا وفاق سے ایئرپورٹس پر اسکریننگ سخت کرنے کا مطالبہ۔ کہا سارے مریض باہر سے آئے تاکہ ایئرپورٹ سے ہی اسپتال منتقل کیا جائے۔ ٹوٹل 15 پیشنٹس آئے تھے، ایک پیشنٹ کو ٹریٹ کر لیا گیا ہے جو ڈسچارج ہو چکا ہے۔ 14 پیشنٹس ہیں اس وقت۔ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو کہ دوسرے ممالک سے ٹریول کر کے پاکستان آئے تھے۔ ابھی تک الحمدللہ کوئی لوکل کانٹیکٹ کرونا وائرس پیشنٹس کا نہیں ہوا۔ کورونا کے خلاف جنگ میں چین پاکستان کے سنگ۔ کٹس اور دیگر سامان کراچی پہنچ گیا۔ پاک افغان بارڈر مزید 7 روز کے لیے بند۔ کوئٹہ کے 2 بڑے اسپتالوں میں قرنطینہ سینٹر قائم۔ پی آئی اے کا حفاظتی اقدام۔ 31 مارچ تک میلان کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں۔ کورونا سے چین میں صورتحال بہتر، اٹلی میں انتہائی خطرناک، پورا ملک لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ امریکہ میں 4 سینٹرز میں وائرس کی تصدیق۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی چیک اپ۔ دنیا بھر میں آج بھی 83 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں چینی اور آٹا بحران پر گفتگو۔ تحقیقاتی کمیٹی کو مزید اختیارات دینے کی منظوری۔ رپورٹ 1 ہفتے بعد ملے گی۔ پینشنرز کے لیے بائیو میٹرک سسٹم لانے کی بھی منظوری۔ ملک سے غربت کا خاتمہ حکومت کا مشن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب۔ کہا مہذب معاشرے کی پہچان غریب کے رہن سہن سے ہوتی ہے۔ ترقیاتی فنڈز پسماندہ علاقوں میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ نون لیگ کے پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اراکین برہم، شہباز شریف کو فوری واپس بلانے کا مطالبہ۔ پارٹی پالیسی پر بھی شدید تنقید۔ صابر شاہ بولے نواز شریف کے بیانیے کو پس پشت ڈال کر نقصان اٹھایا۔ نیا پاکستان آمریت اور فسطائیت کی نئی شکل قرار۔ بلاول بھٹو کے لاہور ہائی کورٹ بار میں وار۔ کہا جو آمروں نے نہیں کیا وہ اس حکومت میں ہوا۔ نئے پاکستان اور نئی آمریت کو بار کے متحرک کردار کے بغیر نہیں گرایا جا سکتا۔ لندن میں نواز شریف کے ذاتی معالج پر حملہ۔ ڈاکٹر عدنان کے سر، چہرے اور سینے پر چوٹیں آئیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی واقعے کی تصدیق۔ بیان میں کہا ملزمان گھڑی چھین کر فرار ہوئے۔ متاثرہ شخص کو گہرے زخم نہیں آئے۔ مفرور ایس ایس پی مفخر عدیل 1 ماہ بعد گرفتار۔ شہباز تتلہ کے اغوا اور قتل کی تحقیقات۔ مفخر عدیل کے 2 ساتھی پہلے ہی زیر حراست ہیں۔ سانحہ گولی مار کے بعد فضا آج بھی سوگوار۔ علاقہ مکینوں کا گلبہار میں سڑک بلاک کر کے احتجاج۔ بلڈر جاوید کو 15 روز قبل نوٹس دیا گیا تھا۔ جاں بحق پروفیسر فرخ کے اہل خانہ کا انکشاف۔ جاوید کی گرفتاری کا مطالبہ۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ادارے ان ایکشن۔ دہلی کالونی میں 160 گز پر قائم 12 منزلہ عمارت مسمار۔ اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر بلڈنگ کنٹرول گلشن ٹاؤن کو نوٹس۔ 4 سوسائٹیز کا ریکارڈ طلب۔ عالمی منڈیوں میں خام تیل مہنگا ہو گیا۔ برطانوی خام تیل $2.37 اور امریکی خام تیل $2 مہنگا۔ سعودی عرب اور روس کا تیل کی پیداوار میں اضافے کا فیصلہ۔ پاکستان میں ڈالر آج بھی اونچا اڑتا رہا۔ 86 پیسے اضافے سے $157.44 کا ہو گیا۔ اسٹاک ایکسچینج میں بھی تیزی۔ 100 انڈیکس میں 636 پوائنٹس کا اضافہ، 37,695 پر بند۔ افغان امن معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز۔ اتحادی افواج 12,000 سے کم کر کے 4,600 کرنے کا اعلان۔ انخلا 135 روز میں ہوگا۔ طالبان قیدیوں کی رہائی کا پروانہ بھی آج جاری ہونے کا امکان۔ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔
हैदराबाद में भी एक मरीज सामने आ गया। मुल्क भर में मुतासरीन की तादाद 18 हो गई। 16 अफराद ज़ेरे इलाज हैं। अब तक 2 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। तमाम अफराद ईरान और शाम से वतन लौटे थे। वज़ीर आला सिंध ने कहा है पाकिस्तान सुपर लीग के कराची में तमाम मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। महकमे सेहत को हिफाजती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई है और सिंध के सरकारी दफातर में शहरियों का दाखिला भी बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना के 18 केसेस रिपोर्ट। सिर्फ सिंध में 15 अफराद मुतासिर हुए, जिसमें कराची के 14 मरीज शामिल हैं। एक शख्स का ताल्लुक हैदराबाद से है। सिंध में कोरोना खतरनाक हद तक बढ़ा तो वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत बैठक लगी। महकमा सेहत और तालीम के उज़रा शरीक हुए। तजावीज़ पेश की गई कि PCL और तालीमी इदारे बंद किए जाएं। ताहम ये तजावीज़ मुस्तरद कर दी गई और फैसला किया गया कि PCL मैचेस 12 मार्च को कराची में होंगे। महकमा सेहत को हिफाजती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। स्टेडियम आने वालों की मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। स्टेडियम में हैंड सैनिटाइजर्स भी नस्ब करने की हिदायत की गई। पहले तो पूरा यहाँ पे फ्यूमिगेशन होगी और उसके बाद सैनिटाइजर्स जो हैं वो हर जगह पर रखे जाएंगे ताकि सब लोग उसको भी इस्तेमाल कर सकें। और स्क्रीनिंग के लिए भी पूरी यहाँ पे एहतमाम किया जा रहा है। आएंगे लोग, उनकी थर्मल स्क्रीनिंग भी यहाँ पे होगी, जिससे एक मज़ीद बेहतर माहौल भी होगा। महकमा सेहत ने भी एहतियाती तदाबीर सख्त कर रखी हैं। सिंध के सरकारी दफातर में शहरियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। सिंध हुकूमत सूबे में कोरोना वायरस की रोकथाम के इक़दामात से कितनी मुतमईन है और वो वफाक से कोरोना वायरस के खिलाफ किन इक़दामात की दरख्वास्त कर रही है, ये बता रहे हैं खावर हुसैन, जिन्होंने तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब के साथ इस पर गुफ्तगू की। जी, कोरोना वायरस का खौफ मज़ीद बढ़ता जा रहा है। 2 मज़ीद नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद सिंध में मजमूई तादाद जो कोरोना वायरस के मरीज़ों की है वो 15 हो गई है। इस हवाले से क्या इंतज़ामात किए जा रहे हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा साहब, खौफ बढ़ता जा रहा है, क्या वजह है? क्या इंतज़ामात बेहतर नहीं थे कि मरीज़ों की तादाद मज़ीद बढ़ती जा रही है? मरीज़ों की तादाद तो दुनिया भर में बढ़ती जा रही है, तो दुनिया भर के बारे में आप ये चीज़ कहेंगे। मैं समझता हूँ थोड़ा सा पैनिक जो है, जो सुबह कुछ ख़बरें मीडिया पर नशर की गई हैं, उसके बाद थोड़ा सा पैनिक बढ़ा है। मैं समझता हूँ हम सबको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और बड़ी एहतियात से काम लेना चाहिए। जो एहतियाती तदाबीर करने की ज़रूरत है वो सिंध हुकूमत कर रही है। टोटल 15 पेशेंट्स आए थे, एक पेशेंट को ट्रीट कर लिया गया है जो डिस्चार्ज हो चुका है। 14 पेशेंट्स हैं इस वक्त। ये सब के सब वो लोग हैं जो कि दूसरे ममालिक से ट्रैवल करके पाकिस्तान आए थे। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई लोकल कॉन्टैक्ट कोरोना वायरस पेशेंट्स का नहीं हुआ, जो मैं समझता हूँ एक मुस्बित। मुर्तज़ा साहब, सिंध हुकूमत से सवाल किया जाता है एयरपोर्ट्स के हवाले से, तो वो ये कहते हैं कि एयरपोर्ट्स जो हैं वो विफाक के अंडर में आती हैं, लिहाजा हमारी तो क्या बरी ज़िम्मा हो सकती है, क्योंकि जितने भी केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं वो एयरपोर्ट के ज़रिए ही हुए हैं? मैं समझता हूँ इस वक्त ज़िम्मेदारी के तयन का नहीं है, इस वक्त ज़िम्मेदारी निभाने का है। मैं समझता हूँ सबको ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ कोई शॉर्ट कमिंग है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैं इस टाइम पर कोई वफाकी हुकूमत से गिला शिकवा नहीं कहूँगा, लेकिन ये से गुजारिश करूँगा कि एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस को और ज़्यादा मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है, उसको स्ट्रिंजेंट बनाने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई अफेक्टी पेशेंट जो है कोरोना वायरस का वो पाकिस्तान दाखिल हो रहा है तो उसको एयरपोर्ट पर ही जांच करके फौरी तौर पर आइसोलेशन में और क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जा सके। ठीक है जी। मुर्तज़ा वहाब जो थे, उनका ये कहना है कि एयरपोर्ट पर भी जो है वो स्क्रीनिंग का अमल जो है उसको मज़ीद सख्त बनाने की ज़रूरत है, ताकि मज़ीद जो है ये वायरस पाकिस्तान में फैलने से जो है वो बचाया जा सके। जी। कोरोना वायरस के पेश नज़र सिंध भर के तालीमी इदारों में तातीलात बढ़ाई जाएंगी या फिर स्कूल्स मामूल के मुताबिक खुलेंगे? सिंध सरकार की बैठक में इस मामले का फैसला ना हो सका। सिंध के तालीमी इदारों में छुट्टियों में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई है, जिस पर फैसला करने के लिए कल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दोबारा बैठक लगाएंगे। सिंध में तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, मामला एक बार फिर तातुल का शिकार हो गया। कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद सिंध के तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़ दी गई, ताहम इजलास में इस बात का फैसला ही ना हो सका। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो थे उनको 16 मार्च तक के लिए बंद किया गया था और अभी ये फैसला नहीं हुआ कि 16 मार्च से आगे भी बंद होंगे। वैसे तो 17 को इनको ओपन होना है, तो ये अभी फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ने भी अपना मौकफ वाज़ेह कर दिया। लार्ज इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं और टारगेटेड हैं इस वायरस के अंदर, तो हम बिल्कुल गवर्नमेंट का साथ देंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी बच्चों की सेहत है। तालीम के लिए जो है ना कोई और स्ट्रेटेजी जरूर बना रही है। मुल्क के मेमारों का मुस्तकबिल क्या होगा, इस संजीदा मसले पर आवाम परेशान है।
तालीमी इदारों की छुट्टियों से मुताल्लिक फैसला कल दोबारा सिंध काबीना के इजलास में होगा। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए जा रहे हैं। ना ही सरकारी अस्पतालों में किट्स मौजूद हैं और ना ही एयरपोर्ट्स पर स्क्रीनिंग का अमल हो रहा है, जबकि एयरपोर्ट्स पर अब तक महकमा सेहत की कोई हेल्प डेस्क भी कायम नहीं की जा सकी। कोरोना वायरस से बचना है तो एहतियात इख्तियार करना होगी। ताहम मुल्क के फिजाई अड्डों पर स्क्रीनिंग के नाकिस इंतजामात हैं। बैरून मुल्क से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों ने आज न्यूज़ से बात की, बताया कि एयरपोर्ट्स पर मशीनें गैर फाल हैं, स्क्रीनिंग का अमल नहीं किया जा रहा, मुसाफिर बगैर स्क्रीनिंग वतन आ रहे हैं। महकमा सेहत सिंध की जानिब से किट्स दिए जाने का दावा भी बेनकाब हो गया। सरकारी अस्पतालों को ताहाल कोई किट्स फराहम नहीं की गई। इस नाकिस हिकमत अमली पर शहरी भी मुतमईन नहीं है। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही ना, हुकूमत को करना चाहिए, इसके अस्पतालों में इमरजेंसी लगाना चाहिए। यहाँ पर सिरिंजें नहीं है बासी में, बाकी क्या होगा। कोशिश की जाएगा, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया करे, लेकिन अभी तक तब्दीली लाई है, लेकिन कोई तब्दीली आई नहीं है। हुकूमत का काम है, हुकूमत को करना चाहिए, देखना चाहिए कि भाई इतना तेज़ी से फैल रहा है पूरी दुनिया में कि जल्द से जल्द इंतजाम करने चाहिए। पूरी दुनिया में इंतजाम हो रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत और अवाम दोनों को इकदाम होंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस के 18 केसेस कन्फर्म हो गए हैं, जिनमें से मुतासर अफराद का ताल्लुक़ 15 सिंध से है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना था, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन की हदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। मुल्क में 8 बड़ी लेबॉर्ट्रीज पर तशखीस का निज़ाम मौजूद है। क्लिनिकल गाइडलाइंस के लिए बर वक्त SOP जारी किए हैं।